हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था और ओम्स लॉ में देखा था कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर will be equal to the ratio of potential difference across the wire and the value of current. It means R will be equal to V upon I and its value remains constant if the physical conditions are the constant. तो अभी हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीज पर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। First point is resistance of a wire is directly proportional to its length. Resistance of a wire is directly proportional to its length. If length is greater, then resistance will be high. It shows that R is proportional to L, where L is the length of the wire, R is proportional to L. The second point is resistance of a wire is inversely proportional to the area of cross section of a wire. Resistance of a wire is inversely proportional to the area of cross section. So we can write R is again proportional to the 1 upon A, where A is the area of cross section of the given wire. Third point is resistance depends on nature of substance and the temperature. From first and second point, we can write R is proportional to L by A and R is equal to rho L by A, where rho is the specific resistance of a given wire and rho will be equal to Ra by L. Here rho is independent of R, A and L, but its value will be equal to Ra upon L. ऐसा नहीं है कि रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसके रेजिस्टेंस पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर या लेंथ पर डिपेंड करता है, क्योंकि इनमें से यदि हम वायर को चेंज करते हैं तो आर भी चेंज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है, लेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें तो वो आर अपॉन एल होगा. हियर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस or resistivity of the wire of given substance. Rho is also called resistivity of the wire of given substance. इसके एक क्वेश्चन हम लेते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ a given wire is 5 ohm. Find the resistance of same wire of double the length. Solution. We know that R is equal to rho L upon A. It is given by 5 ohm. New length L dash is equal to 2L according to the question. Then R dash will be rho L dash upon A, which is rho into 2L upon A.
that will be equal to 2 rho L upon A, and here rho L upon A is given by the pi form. R will be equal to 2 and 2 pi, that is 10 ohm. इसमें यदि हम उसका कोई दूसरा वायर लेते हैं जिसकी लेंथ डबल करते हैं या 3 गुना कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स ट्वाइस और थ्राइस। और सेम एज यदि हम क्रॉस सेक्शन उसका दूसरे वायर को हम लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा हो, तो हम इस फॉर्मूले में रख करके उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने उस चीज को कंसिडर नहीं किया। हम मतलब कोई दूसरा वायर ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया कि L लेंथ का वायर लिया और उसका 5 ओम है, यदि हम 2L लेंथ का ले लें तो नेचुरली 10 ओम हो जाएगा उसका, बिकॉज कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। तो जैसे जैसे हम लेंथ इंक्रीज करते हैं उसी रेशो में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यदि हम सेम वायर को स्ट्रेच करें, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ohm and the same wire stretched up to the double length doubled, then resistance will be not equal to 10 ohm, क्योंकि वहां पर यदि हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम होता है। उसके लिए भी यहाँ पर, क्योंकि एर्थ लेवल पर हम उसका डेरिवेशन नहीं लेते हैं, एंटी एसी लेवल पर, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ उसमें कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन ले लेते हैं। Resistance of a wire is 5 ohm if wire is stretched so that its length becomes doubled. Find the new resistance. इस केस में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि न्यू रेजिस्टेंस R डैश विल बी इक्वल टू N स्क्वायर R. R is previous resistance, N is how much times the length is increased after stretching. जैसे हम बोलें कि here length becomes doubled, it means here N is equal to 2. Given N is equal to 2 and R is equal to 5 ohm, then new resistance R dash will be equal to 2 square into 5, that is 20 ohm. तो यहाँ पर यदि हम उसको स्ट्रेच करके डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस डबल नहीं होगा। जैसे भी पिछले केस में हुआ था कि हमने डबल लेंथ का यदि वो वायर ले लिया है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, बट यहाँ पर हम सेम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम होगा अकॉर्डिंगली, देन द रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम। हियर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस rho depends on the nature of substance and the temperature. If substance remains the same, rho always remains constant. तो बाकी फैक्टर्स पर हम कैलकुलेशन करते हैं। यदि सब्सटेंस वही है, वायर चाहे मोटा है, पतला है या उसकी लेंथ ज़्यादा है, रो उसका सेम ही रहेगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। और मोस्टली हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ये कैलकुलेशन करते हैं कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो टेम्परेचर को कंसिडर नहीं करते। नाउ